السلام علیکم صبح بخیر آداب تہ سارنی دوستن ہند وچھ ونج استقبال تہندس من پسند پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے اندر تہ تام واتان ہر دہ ہر صبح 8 بج پہ 9 بجن تام ڈی ڈی کشر پہ آج تہ پروگرامک بے اخ نو تازہ شمار ہت اس میزبان تہندس خدمتس اندر حاضر یہ ومیز یہ آش تھی ساری ٲسِو بخیر و عافیت بصحت و سلامت خوش تو خوشحال آباد اللہ تعالیٰ تھین اس سارنی پنس حفظ و امانس اندر آمین یا رب العالمین آج اپریل رتچ 27 تاریخ تو دہ آتوار ہند جس طرح سے ہمارے یہاں عبادات کے بعد دن کا آغاز نون چائے کی چسکیوں سے ہوتا ہے اسی طرح سے ہمارے یہاں پروگرام میں بھی ناظرین محترم ہم نون چائے کی چسکیوں کے ساتھ ہی آغاز کرتے ہیں اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے پروگرام جب تک کنکلوڈ نہ ہو تب تک میں نے تو کپ اٹھا لیا ہے میں تو اس کو نہیں رکھوں گی نیچے تب تک جب تک پروگرام کنکلوڈ نہ ہو آپ بھی برابر ہمارے ساتھ بنے رہیں دیکھتے رہیں پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے آج کے اس پروگرام میں شرف میزبانی ہمیں حاصل رہے گا میں رہوں گی آپ کی میزبان اقراء خون اور پروگرام میں شریک میزبان کی حیثیت سے اریبا الطاف وعلیکم السلام کیسے ہیں آپ الحمدللہ آپ کیسی ہیں اریبا میں بالکل ٹھیک ہوں آپ بہت عرصے بعد آپ سے آج ملاقات الحمدللہ بہت وقت کے بعد ملاقات اور بہت اچھا بھی لگ رہا ہے مجھے بھی یقین جانے بس آپ کو تو معلوم ہے میں تو بتا چکی ہوں آلریڈی جی تو ناظرین کو تو آپ نے سلام پیش کر لی ہم ہماری طرف سے ٹیم کی طرف سے یہی امید ہے کہ جہاں بھی ہے صحت و سلامت ہے خوش ہے آج سنڈے کا دن ہے جیسے کہ آپ نے بتایا تو سنڈے کو ہم سب کے کچھ نہ کچھ پلانز ہوتے ہیں اور سنڈے ایک ریلیکسیشن ڈے ہم سب کے لیے ہوتا ہے جیسے میری بات کرے تو جب سنڈے کو میں پروگرام سے نکلتی ہوں تو ایک اچھی سی واک پہ جاتی ہوں فریش ایئر جو ہے چاہیے ہوتا ہے میں بھی آج آپ کے ساتھ واک کروں گی ہاں ڈیفینیٹلی ہم تو ہمیشہ کرتے ہی ہیں جب بھی ہوتے ہیں ساتھ میں تو آج آپ کے کیا پلانز ہیں واک کے بعد والے پلانز ٹو بی ویری آنیسٹ آئی ہیو نو آئیڈیا رائٹ ناؤ کہ میں کیا کروں گی کیونکہ یہ مجھے پتا ہے کہ ایک ہفتے کا کام ہے وہ میں نے آج کرنا ہے لیکن کب کروں گی وہ نہیں پتا سیکنڈ ہاف میں ہی کروں گی یا فرسٹ ہاف میں کروں گی وہ نہیں پتا البتہ چونکہ ویکینڈ بزی بھی رہتا ہے کافی کل ہمارے گھر پہ کچھ چھوٹے چھوٹے مہمان آئے تھے میرے کزنس آئے تھے تو ان کے ساتھ وہ ایک اچھا سیشن رہا کینڈیڈ ڈسکشن رہا تو کافی فکر مند تھے کیونکہ ریزلٹس آنے والے ہیں تک مجھے کیا ہم زن دہی میں پاران صحیح تو وہ مجھے پوچھ رہے تھے اقرا دی ہمیں بتاؤ کہ اس کیا کرو ون بت اس کیا پز اس کت کن پز گھو اب میں تو کاؤنسلنگ کر نہیں سکتی تھی لیکن جو میرا اپنا ذاتی تجربہ رہا ہے اس حوالے سے جو میرا اپنا مشاہدہ رہا ہے تو میں نے کچھ باتیں ان کے سامنے رکھی مشورہ دے دیا صحیح بھی ہے میرے بھی سیم کیس ہے میرے بھی کچھ کزنز ہیں جن کے ریزلٹس آ رہے ہیں اور بڑے ہی اسٹریس میں ہے ابھی پہلا اسٹریس یہ ہے کہ ریزلٹ آ رہا ہے کیسی مارکنگ ہوئی ہوگی کتنا ریزلٹ کا پرسنٹیج ہوگا اور ہم نے کتنے مارکس لائے ہوں گے جو ایک بڑا ذہن پہ ان کے دباؤ ڈالتا ہے اس اسٹیج پہ کیونکہ ان کو لگتا ہے گریڈنگ ہی جو ہے ان کا انٹلیکچوئل ایبلٹی ڈیفائن کرتا ہے اور سیکنڈ یہ کہ ان کو لگتا ہے کہ اب ہم آگے کون سی اسٹریم چوز کریں اور کچھ ایسے کیسز ہے جہاں پہ پیرنٹس جو ہے ان کو بولتے ہیں کہ تم نہ رک جاؤ تم یہ ڈیسائیڈ نہ کرو یہ ہم گریڈنگ کے اکارڈنگ ڈیسائیڈ کریں گے تمہارے مارکس دیکھ کے کہ تم کون سا اسٹریم چوز کرو گے تو بہت سارے بچے اس حوالے سے پریشان رہتے اور میں نے میرے کزنس کو جیسے کہ آپ نے کہا تجربہ ہی ہے جو ہم سامنے رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ مہارت تو نہیں ہے ہم کاؤنسلرز تو نہیں ہیں تو میں نے ان سے یہی مشورہ دیا ان کو کہ آپ نا اپنے دل سے پوچھ کے کرے جو آپ کو کرنا ہے تاکہ جب آپ وہ کرے پھر آگے زندگی میں تو آپ چاہے جہاں بھی پہنچے اس میں کیا بھی اسکوپ ہو آپ ہمیشہ ایک کنٹینمنٹ کے ساتھ وہ کام کریں وہ پڑھائی ہو وہ جاب ہو وہ کوئی بھی چیز ہو جو بھی آپ لے کے چلے تو ابھی ہمارے بچوں کو جو ہے ہمارے اسٹوڈنٹس کو جو ہے مجھے لگتا ہے رہنمائی کی ضرورت ہے پیرنٹس کی طرف سے دوستوں کی طرف سے اور ہمارے جو کاؤنسلرز ہیں ہمارے اکیڈمک کاؤنسلرز ہیں انسٹیٹیوشنس میں ہو یا پرائیویٹلی آپ کسی کاؤنسلر سے بات کریں اپنے بچوں کے لیے ان کا ایک بہت اہم رول ہے جیسا کہ آپ نے کہا نا کہ اس وقت وہ کافی اسٹریس میں نظر آ رہے ہیں یقیناً اسٹریس میں ہی نظر آ رہے ہیں یہ اسٹریس یہ آج کل کے دور میں میں نے جو آبزرو کیا پرسنلی وہ یہ کہ اسٹریس ہوتا ہے یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ بچہ فیل ہو وہ تو نہیں کہ مارکس کم نہ ہو اور اگر مارکس کم ہوں گے تو گھر والے بہت کچھ سنائیں گے رشتہ دار بہت کچھ سنائیں گے جو کہ ہم دیکھتے ہیں مگر چونکہ پیرنٹس اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کے لیے اور ریبا یہ بات ذہن میں آ گئی ان بٹوین خلیل جبران کو آپ پڑھتی ہیں ان کی ایک خوبصورت کتاب ہے دی پروفٹ کے نام سے اس میں انہوں نے والدین سے کہا ہے کہ آپ بچوں کے ساتھ کس طرح سے پیش آئے تو اس میں بھی ایک اس حوالے سے انہوں نے لکھا ہوا ہے خوبصورت سی بات کہ جو آپ کے بچے ہیں وہ
मुस्तकबिल तो है ही, Definitely. आप इनसे मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत करें जरूर, लेकिन इनकी सोच ना बने, इनकी सोच ना बनाएं, क्योंकि हर एक इंसान की जो सोच है वो मुनफरिद है, वो अपनी तरह से सोचता है। बिल्कुल। और साथ में लिखते हैं कि जो आपका बच्चा है, आप जाहिरी तौर पर देख सकते हैं कि ये कहाँ जा रहा है, इसने क्या पहना हुआ है, ये क्या कर रहा है, लेकिन इसका बातिन क्या है, वो कहाँ खुद को देखता है, वो तो नहीं आप जानते, उस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। तो ये खूबसूरत सी बात मेरे ख्याल से जो इस वक्त हमारे यहाँ कई सारे पेरेंट्स देख रहे हैं, हम सबको मद्देनज़र रखने की ज़रूरत है, जहन में रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जो बच्चा है वो यकीनन हमारे मुस्तकबिल के, जो बच्चे हैं मुस्तकबिल के अलम बरदार है। तो आप इनकी ज़रूर इसमें मदद करें कि वो क्या चूज़ करना चाहते हैं, लेकिन उन पे कोई डिसीजन मुसल्लत ना करें, उन पे कोई डिसीजन न थोपे। तो ये आप सबसे सुबह सुबह दरख्वास्त रहेगी गुड मॉर्निंग JNK की पूरी टीम की तरफ से। जी आगे मुझे लगता है नाज़रीन हमारी अपडेट्स का भी वेट कर रहे होंगे, वो भी एक जिम्मेदारी है हम पे। अपडेट्स देते हैं आपको। आज मौसम जो है श्रीनगर और जम्मू में खुश्क रहने के ही इम्कानात है। श्रीनगर की बात करें, दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 22 डिग्री सेल्सियस और कम से कम 7 डिग्री सेल्सियस रहने के इम्कानात है। और वहीं जम्मू के वाले से बात करें, दिन का ज्यादा से ज्यादा 37 डिग्री सेल्सियस और रात का कम से कम 21 डिग्री सेल्सियस रहने के इम्कानात है। नाज़रीन, नेशनल हाईवे की बात करें तो अभी जो मॉर्निंग एडवाइजरी है उसके मुताबिक कोई वेहिकुलर मूवमेंट नहीं होगी। हालात जो हमारी सड़कों की वहां है उसको मद्देनजर रखते हुए, और जो हमारा SLG रोड है उस पे जो है छोटी गाड़ियों को चलने की इजाजत है, करगिल से श्रीनगर की तरफ से, और मुगल रोड पे दोनों अतराफ से छोटी गाड़ियों को चलने की इजाजत दी गई है। और जब हम स्टूडियोज की ओर आ रहे थे ना, तो आपने देखा गाड़ियां थी, गाड़ियां थी और वो जम्मू के थे। समझ ये नहीं आ रहा है कि उन्हें जाना कहाँ है। हाँ। ऐसे में कई सारे लोग जो ट्रैवल करना चाहते हैं या जो बेखबर है, उन्हें मालूम नहीं है कि क्या आज रास्ता खुला है या नहीं खुला, तो वो उसमें बैठते हैं और फिर आगे अल्लाह ताला बचाए उन्हें काफी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तभी हम लोग ये चीजें मद्देनजर रख के आप तक जरूरी मालूमात पहुंचाते हैं, मौसम के हवाले से, ट्रैफिक के हवाले से। खुद भी आप जो हमें नंबरात आप तक पहुंचाते रहते हैं, स्क्रॉल भी होते रहते हैं, स्क्रीन पर भी फ्लैश होते रहते हैं, तो उन पर राबता कायम करके आप उनसे मजीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज जो हमने पहली सौगात आप तक पहुंचानी है वो जाहिर सी बात है मौसीकी की सूरत में ही है, लेकिन आवाज़ का जहां तक ताल्लुक है वही जिलानी की खूबसूरत और खुश लहन आवाज़ में सुनते और देखते हैं ये खूबसूरत सा कलाम। जर्दो मुत छुपानस बागवानस क्या खबर बाग जर्दो मुत छुपानस बागवानस क्या खबर यह ज़मीनस क्या क्या खबर यह ज़मीनस क्या छुन प्यो आसमानस क्या खबर बाग जर्दो मुत छुपानस बागवानस क्या खबर। खून जिगरूक सगद तुम पोशंत बरगा लोल बुर खून जिगरूक सगद तुम पोशंत बरगा लोल बुर वाह हर दुन क्या करम गुलस्तानस क्या खबर हर दुन
کیا کرم یت گلستانس کیا خبر یت زمینس کیا وچھن پیو آسمانس کیا خبر باغ زردیو مت چھپانس باغوانس کیا خبر پوش مالا تائی دشن ہند بار ویترن چھا کمال پوش مالا تائی دشن ہند بار ویترن چھا کمال پیور ویتراون وچھس پٮ۪ٹھ آستانس کیا خبر پیور ویتراون وچھس پٮ۪ٹھ آستانس کیا خبر یتھ زمینس کیا وچھن پیو آسمانس کیا خبر باغ زردیو مت چھپانس باغوانس کیا خبر دس مولو کو وچھ دگی ان خاناس چور گو دس مولو کو وچھ دگی کیا سپد اندری مکینس ات مکانس کیا خبر کیا سپد اندری مکینس ات مکانس کیا خبر یتھ زمینس کیا وچھن پیو آسمانس کیا خبر باغ زردیو مت چھپانس باغوانس کیا خبر میر زفران لول یمی سندی ترائی ساری پشپنا کیا سگو پرچھن گچھن تس گرزانس کیا خبر کیا سگو پرچھن گچھن تس گرزانس کیا خبر یتھ زمینس کیا وچھن پیو آسمانس کیا خبر
زردو متشپانس باغوانس کیا خبر باغ زردو متشپانس باغوانس کیا خبر. वेलकम बैक. आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे. सच बताइएगा, बनाना मूड, बनाना हमारा दिन. ये खूबसूरत सा कलाम और ये खूबसूरत सी आवाज़ वहीद जिलानी की आवाज़ थी जो आपने सुनी और देखी भी. नाज़रीन मोहतरम, चूँकि प्रोग्राम के सिलसिले को हम इसी तरह से आगे बढ़ाते जाएंगे और ज़ाहिर है टीवी स्क्रीन्स के ज़रिए से आप हमें इस प्रोग्राम को देखते हैं, हमें देखते हैं, हम आप तक पहुँचते हैं. और मैं तो अक्सर कहती हूँ कि हम सिर्फ आप तक नहीं पहुँचते बल्कि हम आपके दिलों तक पहुँचते हैं हर दिन हर सुबह 8 से लेकर 9 बजे तक. लेकिन इसके साथ साथ मैं ये देख रही थी फ़ोन पर कि कितने ऐसे लोग हैं जो मोबाइल फ़ोन के ज़रिए से, स्मार्टफोन्स के ज़रिए से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कई सारे लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, अपनी आरोह तजवीज़ हम तक पहुँचा रहे हैं, कमेंट्स भी हमें मौसूल हो रहे हैं. इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. ये सिलसिला इसी तरह से जारी और सारी रहे. लेकिन आज का प्रोग्राम जो है, आज का प्रोग्राम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है. वो क्यों, वो मैं नहीं बोलूँगी, वो मेरी जो साथी मेज़बान है अरीबा अल्ताफ़, वो ज़रूर कहेंगी कि आज का प्रोग्राम इंटरेस्टिंग क्यों है, किस तरह से है और किन के लिए ये सूदमंद साबित होगा, वो सब. लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ पर रुकते हैं एक वक्फे के लिए. अब देखते रहें प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे. इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए. दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से. इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है. खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ. किसी का हुस्न तालीम रंग लाता है, किसी का हुस्न तालीम रंग लाता है, किसी के नसीहों से मंजिल मिल जाती है. मुकद्दर तो हर किसी का खुदा लिखता है, मगर रहनुमा यहाँ वो है जो राह दिखाता क्या है. बात है रीबा. जिंदगी के हर पड़ाव पे इंसान के साथ एक हादसा पेश आता है, एक नई जंग शुरू हो जाती है और इस जंग को लड़ने के लिए एक रहनुमा की ज़रूरत होती है. और अल्लाह ताला ने हमारी ये रहनुमाई जो है, जो हमें ज़रूरत पड़ती है, रिश्तों में रखी है. कभी माँ बाप की सूरत में, कभी एक दोस्त की सूरत में, या फिर कभी एक उस्ताद की सूरत में. आज स्टूडियो में हमारे साथ एक ऐसी ही शख्सियत जो है आए हैं जिनको हमने दावत दी है. और ये शख्सियत न सिर्फ एक मुअज़्ज़ज़ प्रोफेसर रहे हैं बल्कि एक माहिर रहनुमा है, काउंसलर है. उनका इल्म, उनका फैज़ और उनका हुस्न मशवरा स्टूडेंट्स के लिए एक नया रोशनी का दरवाज़ा खोल देता है. वो न सिर्फ तालीम देते हैं बल्कि दिलों को समझते हैं और जिंदगियों को एक नई मंजिल तक पहुंचने का रास्ता दिखाते हैं, जिसकी वजह से उनके शागिर्द अपनी मंजिल को है पा ही लेते हैं. मेरी मुराद है मोहम्मद याकूब खान से, जो कि एक प्रोफेशनल एकेडमिक काउंसलर है. आपका बहुत बहुत इस्तकबाल गुड मॉर्निंग जे में. शुक्रिया. सबसे पहले नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. और उसके बाद डीडी का शिरका शुक्रिया कि उन्होंने मुझे एक ऐसे मौजू पर बोलने की दावत दी जो अहम होने के साथ साथ मेरे दिल के भी बहुत करीब है और नाजरीन तक ये मेरी मैसेज पहुँचे, तो उसके लिए डीडी का शुक्रिया. बहुत बहुत शुक्रिया. ये हमारी खुशकिस्मती है कि आपने हमारी दावत कबूल की और आपने आज फुर्सत निकाल के हमसे इस जो है अहम मौजू पे अभी बातचीत करने के लिए जो है रजामंदी अपनी दिखाई. और इससे पहले कि हम इस अहम मौजू पे बात करें, आपसे जाने इस बारे में और हमारे स्टूडेंट्स तक और पेरेंट्स तक ये बात पहुंचाएं, पहले जो है हम चाहेंगे आप अपने बारे में कुछ बताएं हमारे नाजरीन को और हमें अपने बारे में थोड़ा सा तारुफ दे. ये तो बहुत मुश्किल है मगर लेकिन फिर भी जब लाइफ को समझ करना हो. कि तदरीसी शोबा है मेरा, तालीम है, मैं पढ़ाने का काम किया करता हूँ. मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट्स हैं मेरे मौज़ूआत होते हैं, लेकिन पिछले कई साल से, लगभग 20 साल से मैंने तदरीसी काम जो है थोड़ा बैक बर्नर पर रखा हुआ है
क्योंकि मुझे लगा कि तदरीसी काम करने वाले बहुत ज़्यादा हैं, अच्छा। लेकिन एक ऐसा शोबा इख्तियार करने की ज़रूरत मुझे महसूस हुई कि बच्चों को, जैसे कि आपने कहा, कि रहनुमाई की ज़रूरत है उनके मुस्तकबिल के लिए, जी। जिसको आप काउंसलिंग कहते हैं। तो उसकी तरफ मेरा ध्यान गया और पिछले 20 साल से मैं उसी शोबे के साथ मुंसलिक हूँ। ये मेरा मुख्तसर सा तारुफ। बहुत बहुत खूब। अच्छा याकूब साहब, चूँकि हमने एकेडमिक काउंसलर की बात की है यहाँ, आप एक प्रोफेशनल एकेडमिक काउंसलर है। वनकन किस यथ दौरस मज छ वुछान कि वारियाह ये क्लेम करान कि अस कैरियर काउंसलर्स, अस एकेडमिक काउंसलर्स, मगर बिज़ाती युस एकेडमिक काउंसलर छु ये छु कुस, अमिस मज क्या गोस आसुन, अम छ आसान खतर प्रोफेशनल डिग्री करनी? बहुत अहम सवाल है। देखिए, जब हम कैरियर काउंसलिंग की बात करते हैं तो उस वक्त हमारे जहन में वो सारी एजेंसीज आती हैं जो किसी को ओवरसीज नौकरी के लिए भेजते हैं, किसी को यहाँ एडमिशन्स के लिए भेजते हैं कॉलेज में। तो वो काउंसलर्स नहीं होते हैं, वो उनका एक अपना पेशा है। तो काउंसलर आप इस तरह समझिए कि जैसे मैं आपको कहूँ कि इंसान को अपनी ज़िंदगी में कई बार सलाह मशवरे की ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल, यकीनन। आप खुदा न खास्ता कभी बीमार होते हैं तो अपना इलाज खुद नहीं कर सकते, डॉक्टर के पास जाना है, ये भी एक सलाह है। बिल्कुल। या खुदा न खास्ता कभी आप किसी अदालती मुकदमे में फंस जाते हैं तो आपको वकील की ज़रूरत पड़ती है, आप अपना मुकदमा खुद नहीं लड़ते। तो इसी तरह ये जो तालीम का शोबा है, चूँकि तालीम जो है ये अब आज के ज़माने में ये रोज़गार के साथ जुड़ गई है। मुंसलिक है, बिल्कुल। आप अगले ज़मानों को देखिए, तालीम इतनी अहम रोज़गार के ताल्लुक से नहीं थी तब जितनी आज है। उन दिनों हुनर को ज़्यादा माना जाता था, हुनर जिसके पास है उसके पास तालीम है या नहीं है काफ़ी है, क्योंकि लोगों की ज़रूरतें जो है बहुत कम थी, महदूद थी, और वो ज़रूरतें उनकी जो है वो उनके हुनर से पूरी हो जाती थी। लेकिन 1760 के आसपास जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी सनती इनकलाब जब दुनिया में आया तो उस वक्त तालीम की ज़रूरत महसूस हुई, क्योंकि जब मशीनें लगाई गई तो उनके लिए तालीम याफ्ता लोगों की ज़रूरत पड़ी जो नहीं थे। मजबूरन अनपढ़ लोगों को बिठाया गया और कुछ ही देर में वो मशीनें जो हैं वो काम करना उन्होंने बंद कर लिया, बिगड़ गई। अच्छा। उसके बाद ये जस्तुजू हुई कि भाई मशीनों पर अब तालीम याफ्ता लोगों को तो उनको कहाँ से लाएं। तो जितने भी माहिर तालीम उस वक्त मौजूद थे उनके साथ मशवरा किया गया और उनको कहा गया कि भाई आप क्या करते हैं, इसके लिए हमें ज़रा मशवरा दे दीजिए। तो उस तरह फिर होते होते तालीम जो है ये रोज़गार के साथ जुड़ गई। यही वजह है कि आज हम, आपने शुरू में इसका जिक्र किया कि बच्चे बड़े परेशान रहते हैं कि भाई सबसे पहली परेशानी उनकी ये होती है कि हमारी परसेंटेज क्या हो। एग्जैक्टली। ऐसा पहला नहीं था। हमारे बचपन में जब मैट्रिक में किसी को 60 या 65-70% मार्क्स होते थे तो क्या होता, नाबद नहीं थे और प्रोग्राम, उतनी मुबारकबादियाँ होती था, जश्न मनाया जाता था। जी। आज हम देखते हैं कि जब बच्चा 99% मार्क्स लेके आता है, वालिदैन को इतनी खुशी 99% की नहीं होती है जितना गम उनको 1% का होता है वो कहां। ये आज का अलविया है। वेरी अनफॉर्चुनेट। तो इस लिहाज से इस सिनेरियो में काउंसलिंग की बड़ी ज़रूरत पड़ती है। और इत्तेफाक से अभी आपने जिक्र किया कि रिजल्ट कुछ दिनों में आने वाले हैं। रिजल्ट ऐसे 2 क्लासेस के आने वाले हैं जो एक तालिब इल्म की ज़िंदगी में टर्निंग पॉइंट का वास्ता रखते हैं। 10th और 12th। 10th का जहाँ तक ताल्लुक है कि आपको स्ट्रीम्स जो हैं वो 10th के बाद ही चूज़ करने पड़ते हैं। 12th के बाद आपको प्रोफेशन चूज़ करना पड़ता है। तो बदकिस्मती से यहाँ क्या है कि 2 तबके यहाँ ऐसे हैं, मैं तबके कह रहा हूँ, जिनका हमारे स्टूडेंट्स पर बहुत ज़्यादा असर है। उनमें एक तबका वालिदैन का है और दूसरा तबका उनके दोस्तों का है। ये सही बात आपने कही कि जो है वालिदैन का रोल और इंस्टीट्यूशन का रोल, इस पे और भी बातचीत करेंगे, लेकिन अभी जो है हमारे यहाँ गुड मॉर्निंग JNK के साथ साथ एक प्रोमो चलता है सिंगिंग स्टार का। हम चाहेंगे आप भी हमारे साथ ये प्रोमो देखिए और प्रोमो के बाद हम लोग जो है इस पे और बात करेंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रही हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम जिसका नाम है गुड मॉर्निंग जैन के। आज के हमारे मेहमान हमारे साथ मोहम्मद याकूब खान, जो कि एक एकेडमिक काउंसलर है। आप सर बता रहे थे कि उसमें वालिदैन का जो रोल रहता है और इंस्टीट्यूशन का रोल रहता है, किस तरीके का रोल? देखिए, मुझे इस बात पर कोई एतराज़ नहीं है कि वालिदैन या दोस्त जो है वो एज काउंसलर्स एक्ट करें, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि उनके पास इस किस्म की नॉलेज हो। नहीं तो क्या होता है कि नॉलेज न होने की सूरत में वो अपनी तरफ से तो अपने बच्चे को खराब करने की कोशिश कोई नहीं करेगा, अपनी तरफ से तो वो सही करते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब ऊपर वाले ने यानी कुदरत ने हर इंसान के अंदर कोई ना कोई टैलेंट रखा जरूर होता है, लेकिन होता यह है कि वो टैलेंट चूंकि उसकी शख्सियत के अंदर छुपा होता है, वो उसके लिबास की तरह नजर नहीं आता, और अगर नजर आएगा भी तो उसके लिए एक खासी महारत की जरूरत है कि किसको वो नजर आएगा। वालिदैन को नजर नहीं आता है, टीचर्स को नजर आ सकता था, लेकिन हमारे असातिज़ा जो हैं वो स्कूल में, हालांकि स्कूल में ये बच्चे उनके साथ 7-8 घंटे रहते हैं, लेकिन उनको ये फुर्सत नहीं होती है कि तालीम के अलावा भी वो उन पर कोई गौर करें, उन पर कोई तवज्जो दें, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है, अफसरान भी सारे हमारे असातिज़ा के पीछे पड़े रहते हैं कि भाई इनकी सिलेबस जो है आप जल्दी से कीजिए, तो उनको, उन बेचारों को तो रात को नींद में भी वही सिलेबस का ही रहता है कि सिलेबस इनका करना है, तो इसलिए उनको नजर नहीं आता कि इस बच्चे का टैलेंट क्या है, उसका क्या है। इसके लिए भी काउंसलिंग बड़ी जरूरी है। क्या होता है कि हमारे जो वालिदैन हैं उनके पास जो नॉलेज है कुछ शोबों की, आज तक भी डॉक्टर या इंजीनियर, इस दो के आगे उनकी नॉलेज ठप है। अब कितने डॉक्टर बने, कितने इंजीनियर बने, अगर बनेंगे भी तो कैसे बनेंगे, क्या उनके अंदर वैसा एप्टीट्यूड है, क्या वो मिलान है, उनकी ख्वाहिश है, उनका शौक है, कैसे करें। तो इसलिए ये जो है, या दोस्त होते हैं, दोस्त ये होते हैं कि अब देखिए 10वीं जमात तक 10 साल वो इकट्ठे रहते हैं, उसके बाद अगर एक दोस्त कोई एक स्ट्रीम चुनना चाहे, दूसरा दोस्त तो कहते हैं यार अब 10 साल साथ रहे हैं, अब क्यों जुदा होना है, जो मैं पढ़ना चाहता हूँ तुम भी वही करो, तुम भी। वो सोचता कि ठीक है भाई दोस्ती है, तो उस वक्त उसको ये पता नहीं रहता कि भाई मेरी अपनी ख्वाहिश क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ। तो इसलिए ये है कि वालिदैन को चाहिए, जैसा कि आपने शुरू में कहा कि काउंसलर्स हैं उनसे रब्ता करें और उनके बच्चों, जैसे यूरोप में होता है, यूरोप में बचपन से ही यानी जब चलना शुरू होता करता है बच्चा, उसको काउंसलर के साथ अटैच करते हैं, और हर साल उसकी रिपोर्ट जो है वो पेरेंट्स को मिलती है कि भाई अब क्या इसका मिलान है, क्या है क्या। यही वजह है कि वहाँ इतना बिगाड़ नहीं है जितना बिगाड़ हमारे यहाँ बच्चों में है, नौजवानों में है, क्योंकि जब अब हमारे बच्चे जो हैं बड़े ताबेदार हैं, वो आर्ग्यू नहीं करते हैं माँ बाप के साथ, चलो अब उन्होंने कहा डॉक्टर बनना है, चलो बनते हैं, देखते हैं, लेकिन बन नहीं पाते। और उसके बाद उनका क्या होता है, हम ड्रग एडिक्शन देखते हैं, हम सुसाइडल टेंडेंसीज देखते हैं, तो वो यही है इसका, ये एक बड़ी वजह है कि उनको अपना मुस्तकबिल तारीख नजर आता है, तो इसलिए जो है उनको देखना चाहिए। मेरे ख्याल से कई सारी ऐसी बातें और कई सारे सवालात जो मेरे जहन में भी कायम है, अरीबा के जहन में भी जाहिर सी बातें कायम होंगी, वो हम ज़रूर पूछेंगे, वो अपनी जगह महफूज है, क्योंकि इसके हवाले से हमें और मज़ीद मालूमात आपसे लेनी होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी इस पर्टिकुलर स्टेज पे जब आने वाले कुछ दिनों में रिजल्ट्स डिक्लेयर होने वाले हैं। ज़रूर जानेंगे आपसे। याकूब साहब, आप चाय की चुस्कियाँ लें, हम एक ब्रेक लेते हैं और अखबारात की सुर्खियाँ भी अपने नाज़रीन तक पहुँचाएं। नाज़रीन मोहतरम, एक कमर्शियल स्पॉट आया जाता है, उसके बाद हम आपसे मिलते हैं, अखबारात की सुर्खियाँ आप तक पहुँचाने। अब देखते हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जैन के। मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से।
दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खाइबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जैन के, और अभी वक्त हो चला है आप तक अखबारात की सुर्खियां पहुंचाने का। मेरे पास पहला एक अंग्रेजी अखबार है, इससे सुर्खी सुनिए। द ट्रैफिक ऑन द जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे विल रिमेन सस्पेंडेड फॉर 24 आवर्स because of the road damage due to recent landslides. इसी अखबार से एक और सुर्खी। The weatherman here has predicted a dry spell from Sunday and has said there is a possibility of a heat wave at few places across J&K for the next few days. जी, एक तो बारिशों का सिलसिला वो कुछ दिन पहले मेरे ख्याल से कल ही अभी तक जारी ही है, लेकिन अब आप कह रही हैं कि ड्राई स्पेल स्टार्ट हो रहा है और अभी हीट वेव के साथ, तो कहीं ना कहीं ये अलार्मिंग है, इज इट? ऑफ कोर्स वो तो है। वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट द क्लाइमेट डिजास्टर। इंडीड इंडीड, अल्लाह ताला इन मामलात में आसानी बख्शे। तो मेरे पास नाज़रीन मोहतरम मकामी उर्दू रोजनामा है, और इस उर्दू रोजनामे से भी आप तक ये एक अहम सुर्खी पहुंचाना चाहेंगे। नौजवानों की शमूलियत मुल्क में उनकी तरक्की का एक अहम अंसर, वो ईमानदारी के साथ काम करें ताकि मुल्क की तरक्की को विकसित भारत बनाया जा सके। हमारी हुकूमत नौजवानों के लिए खुद रोजगार के मौके बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज कर रही है। वज़ीर आज़म जी नाज़रीन, मेरे पास एक और अंग्रेजी अखबार है, सुर्खी है डिस्पाइट ग्रूसम डे लाइट किलिंग ऑफ इनोसेंट पीपल सम वैलिएंट टूरिस्ट्स शो करेज टू विजिट कश्मीर विदाउट फेयर। जी, मकामी उर्दू रोजनामे से ये एक अहम सुर्खी सुनिएगा। जम्मू और कश्मीर के वज़रा बैरून रियासतों में ख़ीमज़न मुतल्लिक़ा रियासतों के हुकाम से मुलाकातें कश्मीरियों की सलामती यकीनी बनाने पर जोर। जी, एक और अंग्रेजी अखबार है मेरे पास, इससे सुर्खी है इन द वेक ऑफ द पहलगाम अटैक टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑर्डर्स कश्मीर टूरिज्म सेक्टर टू वेव ऑल कैंसलेशन चार्ज। जी, आखिरी रोजनामा मेरे पास बचा है, ये मकामी उर्दू रोजनामा है, और इससे ये अहम सुर्खी उमर अब्दुल्ला ने रामबन के अपने तीसरे दौरे के दौरान रिलीफ बहाली की कोशिशों का जायजा लिया। हालिया मौसमी सूरत हाल से मुतासरीन की बाज़ाबातकारी सरकार की तरजीह, हम रामबन के लोगों को भूल नहीं गए, मुतासरीन के हक में फी कुंबा 5 मरला अराजी की फराहमी। जी हाँ जी, सर आपने जिस तरीके से बोला कि रिजल्ट आने वाले हैं और 11th-12th का अभी जो है एक स्ट्रेसिंग टाइम है, बच्चे रिलैक्स नहीं हैं, तो अब क्योंकि 10th स्टैंडर्ड के बच्चों को 12th स्टैंडर्ड के बच्चों को पहले तो एक स्ट्रीम चूज करनी है और फिर एक प्रोफेशन, तो किन फैक्टर्स और एलिमेंट्स को दिमाग में रख के बच्चे जो है स्ट्रीम चूज करें, और पेरेंट्स किस तरीके से अपना रोल इसमें निभाए? इसमें ऐसा कि देखिए 10th के बाद यहाँ दो किस्म के स्कूल्स हमारे पास हैं। एक तो सेकेंडरी स्कूल्स हैं जो 10वीं तक ही पढ़ाते हैं, उसके बाद सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हैं जो 12वीं तक पढ़ाते हैं। तो सेकेंडरी स्कूल के जब अभी बच्चे जाएंगे पास होके 10वीं में पास होके जब वो सीनियर सेकेंडरी में जाएंगे, तो वहाँ मेरे ख्याल में ऐसे असातिज़ा को एडमिशन के टाइम पर रहना चाहिए जो काउंसलिंग में कुछ थोड़ा बहुत तजुर्बा रखते हैं, क्योंकि स्ट्रीम चुनने के लिए जो 10वीं का रिजल्ट है वो बहुत अहम है। अच्छा, आप देखिए कोई बच्चा इंजीनियरिंग में जाना चाहता है, लेकिन हम देखते हैं कि उसके मैथमेटिक्स के मार्क्स बहुत कम है, तो वो एलिजिबल उस हिसाब से नहीं है। या कोई डॉक्टर बनना चाहता है लेकिन बायोलॉजी में उसके मार्क्स ठीक ठाक नहीं है, तो इसलिए वहाँ पर उनको मशवरा दिया जा सकता है, और उन लोगों के साथ पेरेंट्स का राब्ता बहुत ज़रूरी है। वो पेरेंट्स उनके साथ ये ना करें बहस कि नहीं जी हमें बच्चे को डॉक्टर ही बनाना है इसलिए आप इसको एडमिट कीजिए। तो ये ज़रूरी है कि उसकी जो परफॉर्मेंस रही है, क्योंकि देखिए 10th में आपको 14 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। 14 सब्जेक्ट्स इसलिए पढ़ाए जाते हैं कि आगे आपको 5 सब्जेक्ट्स का इसमें से चुनाव करना है। 14 होंगे तभी आप चुनाव कर पाएंगे 5 का, और ये 5 का चुनाव किस तरह करेंगे आप, ये देखना। इसमें बच्चे का एप्टीट्यूड, उसकी परफॉर्मेंस और एप्टीट्यूड के साथ साथ उसका अपना मिलान, ये तीनों चीज़ें जब मिलेंगी तो आप एक माजरत चाहती हूँ, यहाँ पे आपकी ही बात में से सवाल जहन में आया, और यहाँ मुझे लगता है हम लोग फिर कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे थोड़ा। अगर बच्चे का इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड देखे और ये दोनों ना मिले तो क्या करें? अब वही तो है कि देखिए बच्चे को बहरहाल आगे बढ़ना है। आप उसका रिजल्ट देख के, उसका परफॉर्मेंस देख के
दो किस्म की सूरत हाल हो सकती है। एक तो ये है कि भाई क्योंकि मैंने कहा ना कि टीचर्स के वहाँ होने चाहिए, उनको पता है कि ये ओवरऑल पूरे साल में इसकी परफॉर्मेंस क्या रही है, तो मे भी 19-20 का फर्क आया हो रिजल्ट में, एग्जामिनेशंस में, तो वो एक्सपर्ट ही देख सकता है। हम उसको हाथमी नहीं लेंगे। अच्छा। ये जरूर है कि उसका मिलान है, उसका एटीट्यूड है, वो वजन तो वो भी रखता है, लेकिन उसका मिलान अगर उसकी परफॉर्मेंस के साथ हो जाता है जी, तो अच्छी बहुत बात है। बहुत 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 अच्छा है। अच्छी बात यह है कि जब आप एक सवाल का जवाब दे रहे थे तो अत दरमियान करेव तुम कत कि जन सानी ये करो हज कत जम्मू कश्मीर कत जन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशन के सनारियो सह तमि लेवल हूं क्या यमि लेवल हूं आसन गहे इत कट जन तुम पान जिक्र करो कि फॉरनस मज वुचन कि बच्चे क्या अमिस क्या इंटरेस्ट सह गोड़ पे बेसिक लेवल पे प्राइमरी लेवल पे वुचन ताकि बुथ गहे अम सद खतर आसानी अमिस गहे मुश्किल कह पाथ चूज करने खतर चूंकि तुम असल तजुर्बे तुम नेबर पर्नोमुत बाकी मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीजन मज रूदमित पर्नावान दरसो तदरीस किस अमल सत मुंसलिक तुम क्या बासान सह लेवल अचीव कर गोल अचीव कर कोता वक्त लगे और तम वातनस। जी, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, जी, आपने हमारे करिकुलम की बात की, जी। इसमें ये सभी चीज़ें आ जाती हैं। मैं आपको बताऊं कि जो हम पढ़ाई करते हैं इस वक्त स्कूलों में या कॉलेज में, ये करिकुलम इसलिए ज़रूरी है कि ये हमको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठने की इजाज़त देता है सिर्फ। एग्जैक्टली। एलिजिबल कि भाई Exactly. ये नौकरियां हैं इतनी, इसके लिए जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो ग्रेजुएट होनी चाहिए। यानी ग्रेजुएशन आप करते हैं कॉलेज में या 12th पास होना चाहिए, यानी स्कूल आउट्स जो हैं जो स्कूल से बाहर आते हैं। लेकिन देखना हमें ये है कि क्या ये फिर जिस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हमारा बच्चा बैठता है एक जॉब के लिए, क्या ये सब्जेक्ट्स जो उसने पढ़े हैं ये उसकी वहाँ कोई मदद करते हैं? नहीं करते हैं। अच्छा। बिल्कुल नहीं करते हैं। जब हम कहते हैं कि एजुकेशन जो है, तालीम जो है, ये अब मुंसलिक हो गई है, इसका ताल्लुक हो गया जॉब के साथ, तो हमारी एजुकेशन जॉब ओरिएंटेड होनी चाहिए, बिल्कुल उसमें ऐसा होना चाहिए। अब 9th क्लास से हमारा कंपटीशन शुरू हो जाता है, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं उनमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो 9th, 10th, 11th, 12th तक के होते हैं। अच्छा। तो अगर 4 साल एक बच्चा एक सेकेंडरी स्कूल, हाई सेकेंडरी स्कूल में रहता है, उस 4 साल में उसको वो सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, सिलेबस कराते हैं, लेकिन क्या उसको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की कोई नॉलेज वहाँ दी जाती है? नहीं दी जाती है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो है वो जनरल एजुकेशन से एंटायरली डिफरेंट है। यहाँ आपके पास एक पेपर आता है, 5 क्वेश्चन आपको करें, 3 घंटे का टाइम है, यानी 40 मिनट का टाइम आपके पास एक क्वेश्चन को करने काफ़ी है। सोचते भी हैं, रिवाइज भी करते हैं, वो भी करें। लेकिन जब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जाते हैं वहाँ वहाँ बिल्कुल पर different 30 सेकंड में आपको एक क्वेश्चन का हल निकालना है, तो कैसे करेंगे आप? तो यहाँ अब नॉलेज नहीं रही, यहाँ टाइम मैनेजमेंट का मामला रहा। क्या ये टाइम मैनेजमेंट आप स्कूल में बच्चों को सिखाते हैं? नहीं सिखाते हैं, है ही नहीं, किसी भी स्कूल में नहीं, ऐसा नहीं है। तो मैं इस सिलसिले में थोड़ा सा अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैंने कश्मीर गवर्नमेंट को एक प्रपोजल दिया है हाल ही में। अच्छा। जहाँ मैंने उनको ये प्रपोज किया है कि भाई 4 साल आपका ये बच्चा रहता है आपके पास जी। उसके बाद फिर और 4 साल वो रहता है कॉलेज में। तो इन 4 साल में आप उसको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए ये कॉम्पिटिटिव स्किल्स आप उसको दे सकते हैं। अगर हफ्ते में सिर्फ 2 पीरियड्स देंगे, सिर्फ 2 पीरियड्स, तो 2 क्लास, तो 4 साल के बाद जब वो 12वीं की डिग्री लेकर आ जाएगा उसके साथ एक और डिग्री होगी, स्किल डिग्री, स्किल डेवलपमेंट की डिग्री हो, उसका जो कॉम्पिटिटिव स्किल्स होंगे वो डेवलप होंगे। इसी तरह जब 4 साल के बाद कॉलेज से वो आएगा उसके बाद स्किल डेवलपमेंट की एक डिग्री होगी। अच्छा, उससे क्या 2 फायदे होंगे। एक तो बच्चा एक तैयार मिलेगा कंपटीशन के लिए, उसको फर्दर किसी मेहनत की जरूरत नहीं है। दूसरा, कोचिंग सेंटर्स में जब वो जाता है तो मैंने देखा है माओं ने अपने झोंके बेचे हैं, बाप लोगों ने अपनी ज़मीन बेची है, 2 मरले 4 मरले कोचिंग सेंटर्स की फीस देने की। मैं कोचिंग सेंटर्स के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन ये है कि अब फैशन बन गया है, अब हर बच्चे को कोचिंग सेंटर में जाना है, और ये माँ बाप का एक वो स्टेटस बन गया है कि हमारा बच्चा कहाँ कोचिंग सेंटर में जाता है।
क्यों ना स्कूलों में और कॉलेजों में ही उनकी ऐसी तरबियत की जाए कि वो निकलते ही जॉब्स के लिए फिट हों, एलिजिबल हों, और वो जो कंपटीशन में उनको जाना है उसका ऑनस्लॉट जो है वो बियर करें, वो क्रैक करें उन एग्जाम्स को, उनको क्वालिफाई करें। तो ये होना चाहिए, तभी आपकी तालीम जो है, जो आपका सवाल है, मयारी होगा और कंपैटिबल होगा जॉब्स के साथ, रिक्रूटमेंट जो ड्राइव है उसका। बहुत अच्छा प्रपोजल जो आपने सामने रखा है गवर्नमेंट के सामने, अभी अंडर कंसिडरेशन है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर हो गया एक इनकलाब आए इंशाल्लाह, इंशाल्लाह जरूर। आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का जिक्र किया, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर बात करें तो हमारे यहाँ स्टूडेंट्स आईएएस और केएस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं और उन एग्जाम्स में बैठते भी हैं। तो मेरा सवाल है, इसके 3 हिस्से हैं, आप समराइज करके जवाब दें। पहला सवाल कि कब से तैयारी करनी चाहिए एक बच्चे को जिसके जहन में है कि मुझे केएस और आईएएस के लिए बैठना है। जी। दूसरा सवाल, क्या स्ट्रेटजी इस्तेमाल करना चाहिए वो स्टूडेंट प्रिपरेशन के लिए, जी। क्योंकि सिलेबस इतना वास्ट है कि सारा कंप्लीट हो नहीं पाता। और तीसरा सवाल, क्योंकि इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब एक बच्चा ये जंग एक होती है, जब ये जंग शुरू करता है तो उसके जहन पे जो मेंटल हेल्थ पे जो असर पड़ता है, वो खुद को कैसे सेन रखे इस दौरान, इस जर्नी के दौरान। जी, इन 3 सवालों से पहले मैं एक और सवाल जोड़ना चाहूंगा आपके इन सवालों में, वो ये कि पहले बच्चा ये 100% तय करे कि मुझे इस शोबे में जाना। अच्छा, आपको मैं इसकी मिसाल ऐसे दूंगा कि हमारे मुल्क की एक स्टेट है जो तालीमी लिहाज से बहुत ही पसमानदा है, बहुत पसमानदा, निचले लेवल पर है। तो इत्तेफाक से लगभग 70% आईएएस ऑफिसर वहीं से आते हैं। अच्छा, कितना कॉन्ट्रडिक्शन है बहुत। तो ये क्यों आते हैं? क्योंकि वो डिटर्मिन्ड रहते हैं कि भाई हमें यहीं मरना है, जीना है, बस इसी के साथ। लेकिन यहाँ हमारे यहाँ फैशन है कि अब 5वां सब्जेक्ट आप लेते हैं 12th में, जी लेते हैं ना, 10th में लेते हैं, 10th के बाद 11th में ऑप्शनल। अच्छा, ऑप्शनल। इसमें 2 सब्जेक्ट्स बड़े अट्रैक्टिव रहते हैं, एक मैथ और एक बायोलॉजी। जो बायोलॉजी के सब्जेक्ट्स देते हैं ना, मेडिकल जो चाहते हैं डॉक्टर बने, वो एहतियात के लिए मैथ भी लेते हैं, अगर नहीं हुआ तो इंजीनियरिंग में जाएंगे। यानी यहीं पर उनका माइंड जो है वो 2 इसमें बट गया, डिटर्मिनेशन नहीं रही। और जो इंजीनियरिंग वाला है वो कहता है बायोलॉजी भी ले लूंगा, अगर इंजीनियरिंग में सीट नहीं मिली तो एमबीबीएस में ट्राई करूंगा। पहले उनको ये देखना है कि हमें कहाँ जाना है, उसके बाद उस पर पूरा जोर लगाना है कि उसी में जाना है, और मेरे लिए कोई या यही है या यही है या कुछ भी नहीं। तो वो जब उसके जहन में रहेगा तो आगे के 3 क्वेश्चन जो हैं वो आसान हो जाएंगे उसके लिए। तो उसमें स्ट्रेटजी ये है कि देखिए 9th से शुरू हो जाता है, हर मुस्तकबिल का फैसला जो है 9th से ही हो जाता है, स्टार्ट होता है वहीं से। तो एक जहन में ये रखना चाहिए, एक 9th के स्टूडेंट को डालना चाहिए, चाहे पेरेंट्स उसको डालें, टीचर्स डालें, कि वह आगे जाके आपको, क्योंकि उसके लिए उनको जरूरी है कि स्कूलों में पहले ग्रेडिंग करें, पहले उनसे पूछें, ग्रुप्स बनाएं उनके। अब उनके पास 10 बच्चे आ गए जो कहते हैं कि हमने जी आगे जाके आईएएस की ट्रेनिंग लेनी है, हमने सिविल सर्विसेज करना है, उनको उसी तरह से ट्रीट करें, उसी हिसाब से थोड़ा थोड़ा उनको डोज दे दें कि क्या उनको करना है। जैसे अखबार पढ़ने की आदत डालिए, खबरें सुनने की आदत डालिए, उनके लिए बहुत ज़रूरी है, करंट अफेयर्स वगैरह, इस तरह से। तो उसके बाद जो है 12th के बाद ग्रेजुएशन का जब दौर शुरू हो जाता है, उसमें थोड़ा सा उनको कंसंट्रेट करना है, इसकी तरफ ध्यान देना है कि भाई अब हमें सिविल सर्विसेज में जाना है तो हमें क्या क्या किस तरह करना चाहिए। अब एक तो उनको अपनी ग्रेजुएशन का कोर्स भी करना होता है, तो हमें कैसे करना है। बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाना है आपका याकूब साहब, जो कि आपने इस हवाले से भी बड़ी ही खूबसूरती से इसको बयान किया कि हमारे यहाँ इदारों में इस हवाले से जो तालीमी इदारे हैं वहाँ किस तरह का माहौल पहले से ही डेवलप हुआ होना चाहिए, ताकि फिर इसको आगे आसानी हो, कोई मसला दरपेश ना आए। इस पर मजीद बात करेंगे, लेकिन यहाँ रुकते हम एक वक्फे के लिए। नाज़रीन मोहतरम, हम रुकते हैं यहाँ पर कमर्शियल स्पॉट के लिए और आपकी खिदमत में हम जल्द हाजिर होंगे। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए।
रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जैन के, और आज के हमारे मेहमान एक प्रोफेशनल एकेडमिक काउंसलर, जिनसे हम और बातचीत करेंगे और भी बहुत सा कुछ उनसे सीखना है, जानना है। लेकिन अभी जो है हमारे साथ सलीम एजाज कपरा साहब जुड़ेंगे। आप जानते हैं वो हमेशा इस वक्त संडे के दिन हमारे लिए गुड मॉर्निंग रोजगार लेके आते हैं। वो मिलकर देखते हैं, उसके बाद गुड मॉर्निंग जैन के को आगे चलाते हैं। नाजरीन मुकर्रम, सुबह खैर। रोजगार के हवाले से चंद इतलात लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर, और मैं हूं सलीम एजाज कपरा। आइए आज के शुमारे का आगाज करते हैं इस नोटिफिकेशन से। नाजरीन, जम्मू एंड कश्मीर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड जम्मू श्रीनगर J&K यूटी के डोमिसाइल उम्मीदवारों से जूनियर इंजीनियर सिविल की असामियां पूरी करने के लिए दरख्वास्तें तलब करते हैं। असामी की कुल तादाद 508, इनमें से 150 असामियां पब्लिक वर्क्स R&B डिपार्टमेंट और 358 असामियां जल शक्ति डिपार्टमेंट में पूरी की जाएंगी। उम्मीदवारों की बालाई उम्र की हद 40 साल मुकर्रर है, अलबत्ता मखसूस जुमरों से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवारों की बालाई उम्र की हद में सरकारी कवायद के मुताबिक छूट दी जाएगी। तालीमी काबिलियत उम्मीदवार ने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या डिग्री हासिल की हो। तनख्वाह का स्केल 35,400 1,12,400 रुपये। इस जमीन में ऑनलाइन दरखास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 3 जून 2025 है। मुकम्मल तफसीलात के लिए लॉग इन करें www.jkssb.nic.in। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हंदवारा को एकेडमिक अरेंजमेंट के तहत टेक्निकल स्टाफ की असामियां पूरी करने के लिए दरखास्तें मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 17। असामी की तफसील यूं है: थिएटर टेक्नीशियन, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स और ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनोकोलॉजी 6 असामियां, टेक्नीशियन ENT 1 असामी, टेक्नीशियन ऑप्थल्मोलॉजी 1 असामी, टेक्नीशियन एनेस्थेसियोलॉजी 4 असामियां, रिफ्रैक्शनिस्ट 1 असामी और डेंटल टेक्नीशियन डेंटिस्ट्री 4 असामियां। उम्मीदवार की बलाई उम्र की हद 63 साल मुकर्रर है। इस जमीन में ऑफलाइन दरखास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 8 मई 2025 है। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार अपनी दरख्वास्त जाती तौर इस पते पर जमा कराएं। रजिस्ट्रार एकेडमिक्स, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हंदवारा। मुकम्मल तफसीलात के लिए लॉग इन करें www.gmchandwara.co.in। नाजरीन, जम्मू एंड कश्मीर लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जम्मू श्रीनगर J&K यूटी के डोमिसाइल उम्मीदवारों से जम्मू कश्मीर के सभी अजला में कायम लीगल एड डिफेंस काउंसिल दफातर में कॉन्ट्रेक्चुअल बुनियादों पर मुख्तलिफ असामियां पूरी करने के लिए दरख्वास्तें तलब करते हैं। असामी की कुल तादाद 140। असामी की तफसील यूं है: ऑफिस असिस्टेंट क्लर्क 60 असामियां, रिसेप्शनिस्ट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर 20 असामियां और ऑफिस पियोन मुंशी अटेंडेंट्स 60 असामियां। उम्मीदवारों की भलाई उम्र की हद 40 साल मुकर्रर है। इस जमीन में ऑफलाइन दरखास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 5 मई 2025 है। दरखास्तें इरसाल करने के लिए पता है: मेंबर सेक्रेटरी J&K लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, ओल्ड सेक्रेटरीट श्रीनगर, या JDA कॉम्प्लेक्स जानीपुर जम्मू। या ख्वाहिशमंद उम्मीदवार अपनी दरखास्तें अपने अपने मुतल्लिका सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी J&K यूटी के दफातर में जमा करा सकते हैं। मुकम्मल तफसीलात के लिए लॉग इन करें www.jksla.gov.in। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी ऑफ कश्मीर के डायरेक्टरेट ऑफ प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग को रूरल बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर में मुख्तलिफ असामियां पूरी करने के लिए दरख्वास्तें मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 11। असामी की तफसील यूं है: चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर 1 असामी, इंक्यूबेशन बिजनेस मैनेजर 1 असामी, टेक्नोलॉजी मैनेजर 3 असामियां, रिसर्च एसोसिएट 3 असामियां,
अकाउंट असिस्टेंट एक असामी, ऑफिस एग्जीक्यूटिव एक असामी और हेल्पर ऑफिस असिस्टेंट एक असामी। इस ज़मीन में ऑफलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 15 मई 2025 है। दरख्वास्तें इरसाल करने के लिए पता है डायरेक्टरेट ऑफ प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग, स्कॉट्स कश्मीर, शालीमार, श्रीनगर। मुकम्मल तफासिल के लिए लॉग इन करें www.scotskashmir.ac.in। नाजरीन, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स नई दिल्ली को मुख्तलिफ टेक्निकल डिसिप्लिन्स में कंसल्टेंट्स की असामियां पुर करनी मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 160, उम्मीदवारों की बालाई उम्र की हद 65 साल मुकर्रर है। मुंतखब उम्मीदवार को फी माह 75,000 रुपये बतौर मुशाहरा दिया जाएगा। इस ज़मीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 9 मई 2025 है। मुकम्मल तफसीलात के लिए लॉग इन करें www.bis.gov.in। और अब रोजगार से मुतालिक आखिरी नोटिफिकेशन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन नई दिल्ली को असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की असामियां पुर करने के लिए अहल और मौजू उम्मीदवारों से दरख्वास्तें मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 66, उम्मीदवार की बालाई उम्र की हद 30 साल मुकर्रर है। तालीमी काबिलियत डिग्री इन लॉ। इस ज़मीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 1 मई 2025 है। मुकम्मल तफसीलात के लिए लॉग इन करें www.upsc.gov.in। नाजरीन मुकर्रम, आज के गुड मॉर्निंग रोजगार में बस इतना ही। इंशाअल्लाह अगले इतवार को रोजगार के हवाले से नई जानकारी लेकर हम आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए मुझे दीजिए विदा और आप देखिए गुड मॉर्निंग J&K का बाकी हिस्सा। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम एजाज कपरा साहब का। आज के हमारे मेहमान हमारे साथ मोहम्मद याकूब खान, जो कि एक प्रोफेशनल एकेडमिक काउंसलर है। और जब आपने ये बात कही कि बच्चे के जहन में होना चाहिए मुकम्मल तरीके से कि मैंने यही करना है, और जब एक बच्चा जो है अब जहन में बना लेते हैं, और आज के दौर की अगर बात करें तो हमारे पास बहुत सारी वैरायटीज़ है, जो डिजिटलाइजेशन है, जो AI का आना है, डेटा साइंस, तो बहुत सारी वैरायटीज़ अवेलेबल है। और जब ये वैरायटीज़ अवेलेबल है तो बच्चे को किस तरीके से हम जो है इन वैरायटीज़ का इस्तेमाल करना सिखाते हैं, और फिर क्या जॉब पोटेंशियल है जो अभी प्रेजेंट सिनेरियो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट का है, क्या हम उसके साथ डील कर सकते हैं? जी देखिए, जहाँ तक अनएम्प्लॉयमेंट का ताल्लुक है, बेरोज़गारी जो है, हमारा जो यूटी है 32% से ज़्यादा है इस वक्त जो राइज हो गई है अनएम्प्लॉयमेंट जी। यानी ये पूरे हिंदुस्तान में दूसरे नंबर पर है। लक्षद्वीप है पहला। तो वहाँ एक वजह है कि वहाँ ज़्यादा क्यों, वहाँ लोग बाहर नहीं जाना चाहते, अपनी स्टेट से बाहर नहीं जाना चाहते। यहाँ भी कम बेश ऐसा है, लेकिन ये है कि मौके बहुत हैं, जॉब्स अवेलेबल हैं। मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है आजकल के सिनेरियो में सही लफ्ज़ नहीं है। अच्छा। अनएम्प्लॉयबिलिटी है, तो इसमें फ़र्क है। अच्छा। अनएम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयबिलिटी में क्या फ़र्क है? अनएम्प्लॉयबिलिटी का मतलब ये है कि आप बहुत भूखे हैं, बहुत ज्यादा भूखे हैं, आपके सामने खाना रखा जाता है लेकिन आप खाने से माजूर है, नहीं खा पाते। किसी वजह से नहीं खा पाते। यानी खाना है लेकिन आप में ही कुछ नुक्स है, आप नहीं खा पाते। इसी तरह हमारे पास जॉब्स हैं यहाँ, लेकिन हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, जो उन जॉब्स को एस्पिरेंट्स जो हमारे हैं, वो कैपेबल नहीं है इन जॉब्स को लेने में। क्योंकि आज जो है, पुराने ज़माने में क्या होता था, मिनिस्टर के पास जाते थे, दरखास्त देकर के मुझे जॉब चाहिए, वो उसी पर अपॉइंटमेंट ऑर्डर लिख के देते थे, इसको जी एडजस्ट कर लो फलान जगह पर। आज अगर आपको एक चपरासी भी अपॉइंट करना है, उसको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठना है, आप उसको फेवर नहीं कर सकते हैं। तो क्या वो उस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के काबिल है? क्या उसके पास इतनी नॉलेज है, उतना वो है? तो अब मैं आपको एक बात बताऊं, एक स्टेट है हमारी मुल्क की, वहाँ 57,000 क्लास 4 जॉब्स का एडवर्टीजमेंट हुआ। अच्छा। 24 लाख फॉर्म फिल हुए, 25 लाख
के करीब फॉर्म्स हुए हो। और अब ठीक है 25 लाख की आबादी है, 25 लाख की जगह 50 लाख भी हो सकते हैं। हाँ। लेकिन मजे की बात यह है कि उसमें एक बड़ी तादाद PhDs की है, हाँ। मास्टर्स MBA, की है, MBA की law है, की है। जबकि इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है 8 पास और 10 पास है। अब देखिए क्या कहाँ पहुंचे क्या हैं। हाल है। अब मैं अपने यूटी की बात, अपने नौजवान की बात करता हूँ। मैंने जो अभी जिक्र किया कि भाई स्कूल्स और कॉलेज की जिम्मेदारी है कि उनको कॉम्पिटिटिव स्किल्स दे दें, उनको इन जॉब्स के ऑनस्लॉट के आगे खड़ा होने की ताकत वो दे दें। तो उसमें ये है कि आप देखिए हमारा JKSS भी है, 20-25 हजार जॉब तो ये भी एडवर्टाइज कर ही लेते हैं हर साल। जी। इसके साथ साथ नेशनल लेवल पर जो है स्टाफ सिलेक्शन का कमीशन है, हाँ। जहां कम से कम 3-4 लाख जॉब्स चलते हैं। फिर हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर है। तो आपका कहने का मतलब है कि स्किल्स की जरूरत है बिल्कुल उनको आप इस काबिल बनाएं कि आप देखिए कि वो इन जॉब्स के लिए अगर fit हो। deal कर सिर्फ सकें इसके 5 साथ। लाख जॉब्स एडवर्टाइज होते हैं नेशनल लेवल पर, अगर आपके बच्चे सिर्फ 10% उनमें से हासिल कर सकें 50,000 जॉब्स तो ले सकते हैं। सही बात है। मुझे लगता है स्कूल्स की आपने जैसे किया फाउंडेशनल लेवल पे ही बच्चों में स्किल्स जो है डेवलप करने की ज़रूरत है। इस पे और बात करेंगे। अभी हमें एक जो है हमारा प्रोमो, एक नया शो सिंगिंग स्टार है आ रहा है, तो उसके हवाले से ये प्रोमो है, मिलकर हम ये देखते हैं, उसके बाद आपसे और बातचीत करेंगे। ठीक है, जरूर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। नाज़रीन मोहतरम, अभी तक अगर आपने हमारा प्रोग्राम देखा लगातार तो आप जानते होंगे कि हमारे साथ जो प्रोग्राम में मेहमान तशरीफ फरमा है आप हैं प्रोफेसर मोहम्मद याकूब खान साहब, जो कि प्रोफेशनल एकेडमिक काउंसलर है। आखिरी सवाल रहेगा क्योंकि प्रोग्राम में ज़्यादा वक्त नहीं हमारे पास, का वक्त का दामन तंग है, तो मेरे जहन में एक सवाल है जो आखिरी सवाल होगा, वो ये कि वनी जन कह बच्चे पे पान बजा फरमो 10वीं पत् कह स्ट्रीम चूज करान अपनी एप्टीट्यूड और अपनी सलाहियत और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अमिश बुथ पेवान ख्याल जिंदगी मज कत ताम पॉइंटस पे कि युस में तम सात डिसीजन नियो ये सही कह वन क्या कर अत स्टेजस पे, मगर ये सो स्टेज ये जना ये डिसीजन न्यून थोड़ा मुश्किल ही पहम आसान, तस क्या कर। नहीं, खुशकिस्मती ये है हमारे बच्चों की कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अभी 2020 की इम्प्लीमेंट हुई है उसमें ये प्रोविजंस हैं, वो कभी भी अपना स्ट्रीम जो है चेंज कर सकते हैं। तो मतलब अब उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई है हमारी यूटी में भी, और उसके तहत उनको क्रेडिट्स मिलते हैं और वो क्रेडिट्स उनके महफूज रहते हैं, वो ज़ाया नहीं हो जाते हैं। कभी भी वो चेंज कर सकते हैं अपना स्ट्रीम, वो क्रेडिट्स उनको। तो ये बड़ी खुशी की बात है। अच्छा, कई सारे स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं इस वक्त, सुबह का वक्त है, एक छोटी सी मैसेज उन सब के लिए, कैमरा आपका वो है। ये है कि देखिए ये आपका जो दौर है, आपकी जो उम्र है, इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं। देखिए इनकलाब जो है वो नौजवान लाते हैं, लेकिन बुजुर्गों की रहबरी में, बुजुर्गों की रहबरी लीजिए, काउंसलर्स से मिलिए, अपने टीचर्स से मिलिए, और अपने लिए जो भी आपका रास्ता है उसको डिस्कस कीजिए उनके साथ। और यही है कि एक से ज्यादा ऑप्शंस अपने दिमाग में मत रखिए, वंस फॉर ऑल इसको चूज कीजिए और उसी पर आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया याकूब साहब, थैंक यू सो मच। आप यहाँ आज आए और इतनी मुफीद और कारआमद बातें आपने हमारे नाज़रीन के साथ हमारे साथ शेयर की। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। मैं भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया, अपनी बात बहुत से लोगों तक पहुंचे और उन लोगों तक पहुंचने की जिनकी ये बात यकीन इंशाल्लाह आपको आने वाले दिनों में हम आपकी जरूरत पड़ेगी तो जरूर आपको फिर से दावत देंगे, तो आप हमारी दावत कबूल कीजिएगा। थैंक यू, कभी भी हाजिर हूँ जी। बहुत शुक्रिया नाज़रीन मोहतरम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज भी आप हमारे साथ बराबर 9 बजे तक बने रहे। हमें उम्मीद है कि जिस मकसद से आज हमने आप तक ये प्रोग्राम पहुंचाया वो मकसद इंशाल्लाह पूरा जरूर होगा और आप इन बातों पर गौर व फिक्र जरूर करेंगे। मुझे और अरीबा को दे आज का प्रोग्राम कंक्लूड करने की इजाजत, इस वादे के साथ कि इंशाल्लाह फिर से लेकर आएंगे आप ही का मनपसंद प्रोग्राम जिसका नाम है गुड मॉर्निंग JNK।